Hey everyone, welcome back to my channel of दान Education. और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो do not forget to subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get the notifications about video updates. So आज हम इस particular class में करने वाले हैं historical background part 2 of Indian polity. Part 1 हम पहले कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो please go and check that video. I'll be attaching the link of that video also. So before we start with this important acts during phase 2, छोटा सा रिफ्रेश कर देती हूँ, आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ. वी वर डूइंग द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वी हैव डन. पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी डन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो हम इसको दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं. एक फेज जो 1858 से पहले का फेज है, बिफोर द रिवोल्ट हैपेंड. 1857 के रिवोल्ट से पहले जो भी लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए वो फेज था, जिसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट किया, पिट्स इंडिया एक्ट किया, हमने charter acts किए 3. And now we are going to start with the phase 2, which is also known as the rule of the crown. So basically what happened in during this phase, the crown came in the picture directly and it started ruling the country directly, right after the revolt of 1857. So what are the important acts? We'll just look at those acts. First is your Government of India Act 1858. Then you have your Councils Act. 3 Council Act है यहाँ पे, 1861, 1892, 1909. Then you have your Government of India Act 1919, very very important acts. Then you have Government of India Act 1935, which contributes largely in a constitution. अगर हम sources पढ़ते हैं constitution के तो we'll realize that this particular act comprises of more than 1/3 of our constitution. Almost 65 to 70% of the constitution is taken from this particular act only, right? And finally, the Indian Act of Independence 1947. So we are going to look at these acts one by one now. So let's start with the Government of India Act 1858. What happened in this act was, now the rule directly came under the crown. With this particular act, it provided for absolute British imperial control over India without any popular participation in the administration of the country, right? पॉपुलर पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इंपीरियल कंट्रोल किसके पास चला गया? द क्राउन गॉट द कंट्रोल. करेक्ट. नाउ व्हाट वर द मेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट हियर? सबसे पहली चीज वी हैव टू रिमेंबर दैट नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी इज अबॉलिश्ड. उसे खत्म कर दिया गया है with this particular act after the mutiny of 1857 or the first war of independence that we Indians call it. ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया and the rule went to the crown. So this act declared that henceforth India would be governed by and in the name of Her Majesty the Queen of England. It must be clear to you now. The second important thing that happened here was the Board of Control, which was created during the Pitt's India Act 1784. This was replaced, right? We remember Pitt's India Act में क्या किया गया था? बाइफर्केशन कर दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल अफेयर्स का. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसको रिप्लेस कर दिया बाय सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया. नाउ दिस वन बॉडी वाज क्रिएटेड एज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया. Along with it, there was a council of 15 members to assist him, to help him through. Right now, he became the representative. The Secretary of State became the representative of the government of British government, with 15 people to assist him. So with this, the diarchy or the double government system that was established during the Pitt's India Act is now kind of ended. Correct? Next important thing, the council was to conduct its business under the directions of the Secretary of State. करेक्ट. जो भी काउंसिल काम करेगी यहाँ पर, वो किसके अंडर करेगी, किसके डायरेक्शंस में करेगी? द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हुई वो क्या हुई? द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. नाउ नॉमेनक्लेचर अगेन चेंज्ड, became the viceroy of India, who will be the representative of Queen in India. Clear? Secretary of State अलग है and this वो अलग काम कर रहे, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे थे ना, वो अलग काम कर रहा है. And this representative, the viceroy of India is the representative of the Queen in India. Correct? So Lord Canning became the first viceroy of India. So just a quick recap of it.
फर्स्ट टाइम नॉमेनक्लेचर कब चेंज हुआ? ड्यूरिंग द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें क्या किया गया? जिसमें कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। सेकंड नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ जब बंगाल हटा के इंडिया लगा दिया गया। नाउ द पर्सन बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। नाउ 1833 के चार्टर से क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज रिप्लेस्ड या रीनेम्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। And who was the first Governor General of India? Lord William Bentinck. Correct. Now again 1858 में क्या हुआ? The nomenclature changed again. The Governor General of India became the Viceroy of India. And who was the first Viceroy of India? Lord Canning became the first Viceroy of India. I hope this is clear, and please remember these changes that came with the name of the person who became the first to be called so, right? Now next comes your Indian Council Acts. अब ये जो एक्ट्स हैं, these are very very important acts because अगर हम 1861 के एक्ट की बात करें तो this particular act laid the formation of cabinet type of government, या आप कह सकते हो responsible government, right? जिसमें कि उनको बता दिया गया कि भाई आपको ये दिया गया है काम और ये आपकी जिम्मेदारी होगी। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक फॉर्मेशन शुरू यहाँ पर हो गया। सो द एक्ट ऑफ 1861 एनलार्ज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल। जो भी हेड थे उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बढ़ा दिया गया, पहले 15 थे, इंक्रीज किया गया यहाँ पे। द एक्ट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स कंडक्टिंग द कंसर्निंग द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अभी तक जो कंडक्ट कर रहे थे बिजनेस वो कौन कर रहे थे? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल थी 15 लोग की जो काउंसिल थी ना वो कर रही थी ना। यहाँ पे गवर्नर जनरल को एम्पावर कर दिया गया टू मेक रूल्स एंड orders in concern with the conduct of business. Correct? It marks the beginning of portfolio system or cabinet form of government in which every member of the council was made responsible to its department, and the acts done by the member were deemed as the act of governor general in council. So now, as I told you in the beginning here only, कि ये इससे this particular act marks as the beginning of portfolio system. Portfolio division किया गया. Now the member of the council were made responsible to their departments, and जो भी उसमें act किया जाएगी will be considered as the act of governor general in the council, right? इसके अलावा the governor general had given the power to veto the decisions of central legislature. जो सेंटर में लेजिस्लेचर है वो गवर्नर जनरल को पावर दे दी गई जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसको वीटो करने की। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है, ऐसे यहाँ पे गवर्नर जनरल वाज गिवन दिस वीटो पावर ओवर दीज decisions that was made by the central legislature. Also he was given the ordinance making power, right? The ordinance making power of the president you must have heard of. Article 123 of our constitution talks about the ordinance making power of the president. ऐसी ही ordinance making power यहाँ पे गवर्नर जनरल को दे दी गई थी through this act. Correct? अच्छा, मैं यहाँ पे बहुत वो चीजें पढ़ा रही हूँ आपको या वो चीजें बता रही हूँ आपको जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के लिए इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक्स हियर. करेक्ट? सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि कुछ टॉपिक्स कुछ चीजें रह गई हैं नहीं रही हैं. हम यहाँ पे वो फोकस करते हुए चल रहे हैं जो हमारे फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या यू कैन कॉल इट इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. This act remodeled the Legislative Council that was created by the Charter Act of 1853. अब Charter Act ने एक Legislative Council को create किया था, right? जिसमें कुछ functions थे और एक act, but basically एक Legislative Council create किया गया था, ठीक है? जिसमें हमने पढ़ा भी था कि Legislative Administrative Functions को जो थे Councils के उनको अलग-अलग identify कर दिया गया था. तो इसने उसको remodel किया. For the purpose of legislature, the Governor General Council was enlarged into a Central Legislative Council. और इसी पर्पस के लिए मतलब लॉ मेकिंग पर्पस के लिए जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसको बढ़ाया गया एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरह, जिसमें कम से कम 6 एंड नॉट मोर देन 12 और अधिकतम 12 से ज्यादा नहीं हो सकते मेंबर्स. नॉट लेस देन हाफ वर टू बी नॉन ऑफिशियल्स. तो कम से कम 6 मेंबर्स और मैक्सिमम 12 मेंबर्स, लेकिन उनमें से
आधे जो होंगे नॉन ऑफिशियल्स होंगे. नाउ व्हाट इज नॉन ऑफिशियल मेंबर हियर? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर वर पीपल हु वर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, who were government officials. So these were the people who were the members of these councils. But at the same time यहाँ पे एक नई चीज क्या आई कि यहाँ पे non official members who were not directly under the British you know working, और जो ब्रिटिशर्स के साथ काम नहीं कर रहे थे, they were non official members, उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करने की बात इस एक्ट के थ्रू की गई है. करेक्ट. तो हम ये कह सकते हैं कि दिस एक्ट बेसिकली enabled the Governor General to associate representatives of the Indian people to work with the legislation, right? By how? By nominating them to his expanded council. इस तरह से उनको भी एक तरह से मिल गया हिस्सा, जिससे एक तरह से ये हुआ कि इससे गवर्नर जनरल को जो था उसके कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्लूड करने से हुआ कि चलो ठीक है, अब एवरीबडी इज given a representation. ठीक. लेकिन बहुत ज्यादा से नहीं थी लोगों की, यहाँ पे बहुत ज्यादा से नहीं थी नॉन ऑफिशियल्स की. Now what was the function? The function of this Central Legislative Council were confined strictly to legislation. Execution में उनका कोई रोल नहीं था, सिर्फ लॉ मेकिंग फंक्शन तक इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था. Right? Now similar type of legislative bodies were also created at the provincial level. अब ये सेंट्रल लेवल पे किया गया, और जो प्रोविंसेस भी थे, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, वहां पर भी इस तरह की लेजिस्लेटिव बॉडीज को क्रिएट कर दिया. अभी भी सिर्फ लॉ मेकिंग पर्पस है, एग्जीक्यूशन में इनका कोई रोल नहीं है. डू नॉट फॉरगेट दिस. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो नेक्स्ट कम्स योर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. इस एक्ट में क्या किया? दिस एक्ट इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट इलेक्शंस. रिमेंबर दीज थिंग्स. इनडायरेक्ट इलेक्शंस इससे इंट्रोड्यूस हुए. It also enlarged the function of legislative councils, giving them the power to discuss the budget and address questions to the executive. थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया गया, जो legislative councils थी, और उनको उनके functions को बढ़ा दिया गया. उनको अब now they can discuss budget और कुछ questions भी executive को पूछ सकते हैं. अभी तक मैंने बताया था ना सिर्फ आपको कि only law making था उनका, execution में उनका कोई रोल नहीं था. Also it enlarged the size of the legislative councils. अब ये सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, उसका साइज भी थोड़ा बढ़ाया गया. एक और एडिशनल चीज यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है कि इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू क्या किया गया, जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो नंबर है उसको भी इंक्रीज किया गया. लेकिन अभी भी जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं उन्हीं का वोट डलता था, उन्हीं को से था. बात करने का, डिस्कस करने का राइट तो दे दिया, चलो बात कर लो, डिस्कस कर लो, क्वेश्चन कर लो, लेकिन उसके आगे ज्यादा राइट मिला नहीं था. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज विच आई वुड लाइक टू टेल यू हियर इज कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें जो नॉमिनेशन होता था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, दैट वाज डन थ्रू द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. राइट. जो बेसिकली जो हमारी जो प्रोविंस बन गया है ना, उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और बंगाल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ला रहे हैं. अब वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कैन बी एनीवन हु आर नॉट अंडर द ब्रिटिश वर्किंग डिपार्टमेंट्स, आई वुड से. ठीक है, जो काम नहीं कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के साथ. और जो प्रोविंशियल लेवल पे थे, जो प्रांतीय लेवल पर आई वुड से जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, दे वर नॉमिनेटेड बाय द लोकल बॉडीज. Local bodies like your universities, your district boards, it can be municipalities, it can be the zamindars. कोई भी उनको नॉमिनेट वहां पर कर सकता था जो लोकल बॉडीज थी. ठीक है, सेंटर पे कैसे कर रहे हैं और प्रोविंशियल लेवल पे कैसे कर रहे हैं इनका नॉमिनेशन. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट हैपेंड थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्ट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ कम्स योर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. नाउ दिस एक्ट इज really important. इस एक्ट को मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म की तरह भी देखा जाता है. एक चीज जो इस एक्ट से हुई है वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. अलग अलग इलेक्टोरेट बना दिया गया था. ये आप प्लीज याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है हिंदू हिंदू के लिए वोट करेगा, मुस्लिम मुस्लिम के लिए वोट करेगा.
So provision of separate electorate came from Minto-Morley reforms. Now, let's talk about the points here in this particular act. The first attempt to introduce representative and popular element of the government. इसमें क्या किया, एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात की गई है. थोड़ा सा इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं हम. रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात हम देख रहे हैं यहाँ पे. ऑल्सो इट चेंज द नेम ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. अभी तक जो केंद्रीय वो था विधान परिषद था, उसका नाम बदल के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया. करेक्ट. इसके अलावा इट इंक्रीज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द इंपीरियल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. इसमें काफी अच्छा नंबर, जो अभी तक 16 नंबर था सेंटर में, उसको 60 कर दिया गया. मतलब गुड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थ्रू दिस एक्ट इन बोथ द प्लेसेस, सेंटर एंड प्रोविंशियल लेवल पे. नंबर्स ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वाज इंक्रीज through this particular act. Next, non-official members hold majority in the provincial legislative councils, but official members hold majority in the central. तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनको मेजॉरिटी में रख दिया गया प्रोविंशियल लेवल पे, प्रांतीय स्तर पर, जो प्रांतीय विधान परिषद है उसमें. लेकिन अभी भी जो सेंट्रल या जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे ऑफिशियल मेंबर्स की ही मेजॉरिटी है. ऑफिशियल मेंबर्स मतलब पीपल ऑफ द गवर्नमेंट, पीपल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ऑफिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं लोग. करेक्ट. आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ. नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंड, मतलब और भी चीजें हुई हैं, जैसे थोड़ा सा इनका डिस्कशन का लेवल बढ़ा दिया गया. जो काम वो कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन ज्यादा होने लगा. थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ी थोड़ी पावर्स दी जाने लगी थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्ट. जो एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, दैट वाज अपॉइंटेड इंडियंस टू द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स. अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ही थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव में कोई नहीं था, एग्जीक्यूटिव में कोई से नहीं था. बट विद दिस पर्टिकुलर एक्ट एग्जीक्यूटिव में इंडियंस वर अपॉइंटेड. राइट. जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, जो प्रोविंशियल लेवल पे भी जो एग्जीक्यूटिव, जो कार्यकारिणी होती है ना बेसिकली, जो कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका परिषद में भी अब इंडियंस का अपॉइंटमेंट होने लगा था. तो यू मस्ट बी नोइंग हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. हिज नेम वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेंबर. राइट. नेक्स्ट, it established separate electorate for Muslims. This is what I told you in the very beginning कि इसको separate electorate के लिए भी बहुत ज्यादा जाना जाता है. मतलब इसमें अगर हम कहें कि काउंसिल लेवल पर और लेजिस्लेटिव लेवल पर, लेजिस्लेटिव और आपका एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी चेंजेस आए हैं. थोड़ा से बढ़ गया था इंडियंस का. जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को ही वॉज अपॉइंटेड इन दी वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो थोड़ा से आपको रिप्रेजेंटेशन दिखना शुरू हो जाएगा. राइट. लेकिन जो चीज के लिए जाना जाता है दैट इज दी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स. नेक्स्ट कम्स योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है. नाउ दिस पर्टिकुलर एक्ट, व्हाट दिस एक्ट डिड वाज, इसने गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स को सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया. इसने क्लासिफाई किया कि गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम एक सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे देख सकते हैं अलग अलग. तो जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे वो थे जिनको रखा गया था, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे बेसिकली दे केम टू द सेंट्रल लेवल. एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स वर द सब्जेक्ट्स व्हिच वर एक्सक्लूसिवली केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर सब डिवाइडेड. मतलब सेंट्रल सब्जेक्ट्स तो सारे हैं ही सेंटर के कंट्रोल में, लेकिन जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स भी हैं, जो प्रोविंशियल लेवल पे भी सब्जेक्ट्स हैं, उनका डिवीजन भी बहुत स्मार्टली किया गया इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स. नाउ व्हाट वर द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स? एज I've written here, you can see this here. The transferred subjects were to be administered by the governor with the aid of ministers responsible to the council. Right. और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं ये एडमिनिस्टर किए जाएंगे बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल
with no responsibility to the legislative. Right? तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि रिजर्व सब्जेक्ट्स एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर ट्रांसफर्ड बाय इंडियन मिनिस्टर्स। इसको समझने के लिए सिंपल शब्दों में ये समझिए कि जो यहाँ पे भी रिजर्व सब्जेक्ट रख लिए कि कुछ सब्जेक्ट्स है जिसको हम ही देखेंगे अपने हिसाब से, इसमें आपका कोई से नहीं, द इंडियंस हैड नो से इन दैट, बट द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वर टेकन केयर बाय द इंडियन मिनिस्टर्स आल्सो। इट एस्टैब्लिश डायरकी इन दी प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में फिर से डायरकी का एस्टैब्लिशमेंट इस एक्ट के थ्रू हुआ है। नेक्स्ट इज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव कवर्ड ऑल द सेंट्रल सब्जेक्ट्स इन सम प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। जैसे कि हमारे यहाँ लिस्ट होती है ना, सब्जेक्ट लिस्ट होती है जो अभी हम पढ़ते हैं, 3 सब्जेक्ट्स लिस्ट है हमारे यहाँ, सेंट्रल, स्टेट एंड थर्ड लिस्ट। So now all the bills of the legislatures required Governor General's assent, while the Governor General could enact bills without assent of the legislature. तो जितने भी bills legislature से आएंगे उनको Governor General का assent चाहिएगा। जैसे प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं ना, लेकिन जो गवर्नर जनरल इनैक्ट करेंगे बिल्स वो किसी लेजिस्लेचर के असेंट के बिना कर सकते हैं, उनसे उन्हें कुछ नहीं पूछना। करेक्ट? तो एक तरह से अभी भी पलड़ा जो है वो ऑब्वियसली ब्रिटिश जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हीं का ज्यादा भारी है, यहाँ पर भी देखा जा सकता है। ऑल्सो द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकेमरल थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्ट। It also established the Public Service Commission in India. Okay, let's move forward. Now comes your Government of India Act, which becomes again the very, very important act. This act provided for the establishment of Federation of India consisting of provinces and princely states. अब इसे इंडिया को एक पूरा फेडरेशन की तरह इसने establish किया जिसमें provinces थे और princely states थे। Provinces, the British provinces and princely states जो यहाँ के अभी भी जो राजघराने थे, जो रजवाड़े थे, उनके states. डायरकी विड्रॉन, डायरकी को विड्रॉ कर लिया गया फ्रॉम दी प्रोविंसेस एंड एस्टैब्लिश्ड एट द सेंटर। जो डायरकी थी, जो डुअल गवर्नेंस कह सकते हैं उसको हम, उसको यहाँ से हटाया गया इंडिया से, मतलब प्रोविंशियल लेवल से हटाया गया और उसको एस्टैब्लिश कर दिया गया दी सेंट्रल लेवल। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। थोड़ा सा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस किया गया, उनको थोड़े एम्पावर किया गया यहाँ पर। इट इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट इलेक्शंस, पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस इस एक्ट के अंडर हुए, इंट्रोड्यूस किया इस एक्ट ने। इट प्रपोज्ड द फेडरल लेजिस्लेचर टू बी बाइकेमरल। जो सेंट्रल या फेडरल लेजिस्लेचर है, जो पूरे कंट्री का लेजिस्लेचर है, उसको इसने बाइकेमरल प्रपोज किया कि 2 तरह से होना चाहिए, विद बोथ दी हाउसेस एंड दैट थिंग। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स divided into federal, provincial and concurrent list. The list I was talking about, the subject list I was talking about earlier, जो अभी भी हम फॉलो करते हैं इसको, सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ऐसे ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड किया था 3 लिस्ट में। रिजर्व सब्जेक्ट्स एट द सेंटर टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर जनरल। अभी भी रिजर्व सब्जेक्ट जो है कौन एडमिनिस्टर करेगा उनको? गवर्नर जनरल ही करेगा। गवर्नर जनरल टू बी असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो गवर्नर जनरल है उसको कौन असिस्ट करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, टॉप मोस्ट कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट की इसने बात की है, विद ओरिजिनल एपीलेट एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जिसका अपना एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होगा, एक अपील जो अपील के थ्रू होगा, और एडवाइजरी जिसमें वो एडवाइस देगा ज्यूरिसडिक्शन के साथ। अपील्स फ्रॉम द फेडरल कोर्ट वेंट टू द प्रिवी काउंसिल इन लंदन। और फेडरल कोर्ट से भी अपील कहाँ जा रही है? इंडिया से बाहर प्रिवी काउंसिल जो काउंसिल है वो लंदन, वहां पहुंचेंगी। करेक्ट? तो अपने यहाँ पे फेडरेशन का एक टॉप मोस्ट कोर्ट was established. Last but not the least, it's your Indian Independence Act 1947. With this particular act, we were given basically the I would say independence कह सकते हैं इसको हम, इस sovereignty and responsibility of British Parliament for India abolished. अभी जो हमारे ऊपर sovereign जो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी, हमें जो कंट्रोल कर रही थी, या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की इंडिया के ऊपर, उसको अबॉलिश कर दिया गया। इंडिया बिकेम काइंड ऑफ सॉवरेन, अब उसके ऊपर किसी का आधिपत्य नहीं रहा। गवर्नर जनरल एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स। हेड किसको बनाया गया? गवर्नर जनरल्स को और प्रोविंशियल गवर्नर्स जो थे, जैसे हमारे यहाँ अभी पीएम,
प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम्स है ना, ऐसे हेड बना दिया गया, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स बना दिया गया. द ब्रिटिश क्राउन सीजेस टू बी द सोर्स ऑफ अथॉरिटी. और इस एक्ट के साथ ब्रिटिश क्राउन के पास जो अथॉरिटी थी, जो पावर थी या सोर्स ऑफ अथॉरिटी थी, उसको खत्म कर दिया गया, एंड कर दिया गया. So with this we became independent. So if you liked the video, do not forget to subscribe, like and share. Do ask for queries and doubts in the comment section. Anything that you want to ask, I'll try and resolve those queries. And keep sharing, keep liking. And if you're new to the channel, do not forget to subscribe and share it with your friends. Thank you so much.